Bismillahirrahmanirrahim. I'm Aziza Munir, and today we are meeting for our fourth lecture, which is random variables. Now, before we proceed to random variables, I would like to describe a little bit that what we have discussed in continuation with the probability and some stuff which is related to today's lecture as well. We have discussed in last lecture that what is probability and how probability is actually used in business orientations and in business problems. We have discussed various laws of probability, which were the additive law and multiplicative law. We have discussed this with reference to multiple examples as well. Then we discussed the conditional probability and joint probability. What are the assumptions we have made in both the cases, and for joint probability, as we use mutually exclusive events and independent events, so we have taken into consideration the mutually exclusive and independent events as well. Now today what we'll be doing is focused towards the random variable. Now what is actually a random variable we'll be covering today. What are different forms of random variables? Basically there are two forms, which are discrete random variables and continuous random variables. We will be discussing their examples and identifying that in which scenario, in which business scenario actually the discrete random variable applies and where the continuous random variable is more appropriate for generalizations. Then we will be talking about random variables with respect to the probability distribution, meaning that when we are actually discussing random variables, we have to discuss not the probability but probability frequency distribution as well, or which is known as probability distribution, which can be either discrete and continuous on similar grounds. What are they and how we can apply this in our business techniques we will be discovering today. Then we will be talking about mean of random variables, that if there exist multiple distributions, if there exist multiple values and multiple variables, then how we can calculate the mean of these set of values, and how we can calculate the variance of this particular domain of this particular discrete distribution, how we can calculate the variance of it, meaning we will be talking about mean and variance of random variables. And we will also be analyzing properties, some very common properties of mean and variance, but we will be covering in detail the properties of mean and variance in our next lecture. Okay, now what is actually a random variable? Now this particular area, this particular analysis is very interesting in knowing that usually when we made statistical inferences, we usually talk about generalizations. When we talk about inferences, we talk about generalizations, and that is how we discuss probability. That obviously we are not for sure that what will going to happen in future. Therefore, we have to make certain generalizations, but these generalizations, when we are talking about statistical inferences or statistical data-based generalizations, they have to be based on specific information which is prior with us, and on the basis of this information, we are anticipating that what is going to happen in future. So, we talk about uncertainties, but not as such that these uncertainties are simply ignorant by the interpreters. No, we are taking them in a form that if this particular area has been discussed prior, or this particular studies reveal these results, then what will going to happen in future on the basis of current data. So the inference is comparatively more sound and is comparatively more accurate. So we deal with problems which provide partial information obtained from the subset of data of interest. A very important thing which I have just told you, that yes, we deal with problems which are not fully equipped with information. These are having partial information, but from where we have taken this partial information is the subset of the data which is already existing. Now this data of interest which is already existing
is the set of values which are already been presented to us, which are already been generated in previous years, and on the basis of these years we are talking about some generalizations for the coming momentums and for the coming time periods. So probability theory is essential in providing a mathematical model that theoretically describes the behavior of population associated with statistical experiment. Now we have discussed what actually a statistical experiment is, and we have also analyzed that an experiment generates one outcome. If we are conducting one experiment, then there will be one outcome. So if we are talking about probability theory, तो मैथमेटिकल मॉडल जो हमने एक डेवलप किया था प्रोबेबिलिटी थ्योरी की बेसिस के ऊपर, वो एक पॉपुलेशन को स्टडी करता है बेसिकली, और उस पॉपुलेशन की बेसिस के ऊपर हम एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं. उस एक्सपेरिमेंट के जो भी रिजल्ट्स निकलते हैं उनको हम एनालाइज करते हैं फॉर मेकिंग जनरलाइजेशंस फॉर द future time periods. These models are similar to relative frequency distribution, which are also called probability distribution. We have discussed in detail the model development when we were discussing model development in our first or second lecture. We have described that the relative frequency distribution model is the one in which we have allocated multiple frequencies to our events. Similarly, if we are talking about the mathematical model development, in that case we have to focus on the statistical experiment and the frequencies which we have which we are talking about, that what they are describing when studied in combination. Now what are they? We'll be discussing it shortly with examples. The term statistical experiment is used to describe any process. अभी हमने डिस्कस किया statistical experiment. तो statistical experiment एक टर्म है जो कि डिस्क्राइब करती है कोई भी प्रोसेस जिसमें मल्टीपल मेजरमेंट्स हमारे पास आती हैं, और उन मल्टीपल मेजरमेंट्स में से if we are not interested in the results of all the measurements, we are just choosy and picky about a specific information which is the resultant of the experiment. So what we'll be doing, कि अगर हमने फॉर एक एग्जाम्पल भी मेंशन है कि अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया है 3 times, तो हमारे पास एक कॉइन टॉस करने से 2 आउटकम्स आते हैं, मीनिंग 2 पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं. या तो एक अगर हमने कॉइन टॉस किया है तो हमारे पास या तो हेड अपेयर होगा या टेल अपेयर होगा. अगर हमने 2 कॉइन्स टॉस किए हैं तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज हैं वो 4 हो जाएंगी, राइट. एक कॉइन टॉस करने की, इफ यू टॉसिंग 1 कॉइन, तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है वो 2 है, मीनिंग कि या तो हमारे पास हेड अपेयर होगा या हमारे पास टेल अपेयर होगी. लेकिन अगर हमारे पास 2 कॉइन्स आ जाते हैं तो उस केस में हमारे पास जो रिजल्ट है वो मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, मीनिंग 2 मल्टीप्लाई बाय 2, meaning either head or tail appears with 1, or head appears, or tail or head appears, or tail or tail appears, meaning जो हमारे पास रिजल्ट है वो 4 आउटकम्स हो सकते हैं. सिमिलरली अगर हमारे पास 3 कॉइन्स हैं जो हमने टॉस करने हैं, तो हमारे पास एक कॉइन टॉस करने के 2 आउटकम्स हो सकते हैं, हेड या टेल. तो अगर हमने 3 हेड्स को टॉस 3 कॉइन्स को टॉस करना है तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो होगा 2 into 2 into 2 into 2. या हम इसको ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे पास 2 कॉइन्स को टॉस करने का 4 आउटकम था, तो 3 कॉइन्स को टॉस करने का 8 आउटकम होगा, मीनिंग एक कॉइन टॉस करने से हमारे 2 आउटकम्स आते हैं, तो 3 कॉइन टॉस करने से हमारे 8 आउटकम्स आएंगे, राइट, which are mentioned in the sample space. Here we have tossed actually 3 coins which are giving either 3 heads or 2 heads 1 tail, or 1 head tail and head, then tail head head, head tail tail,
tail, head, tail, 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 head, or all three tails. If one is concerned only with number of heads appearing in the outcome, meaning कि although हमारे पास जो outcomes हैं वो तो 8 हैं, हमारे पास 8 outcomes appear हुए हैं, लेकिन हम आठों में से हम आठों के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। एक एक्सपेरिमेंट हमने कंडक्ट किया है जिसमें हमारे पास जो सैंपल स्पेस है, जो मैक्सिमम आउटकम हो सकता है एक एक्सपेरिमेंट का, वो 8 आउटकम्स हो सकते हैं, 8 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि उसमें तीनों की तीनों हेड हो, एक पॉसिबिलिटी ये है कि उसके अंदर 2 हेड और 1 टेल हो। अगेन 2 हेड्स, थ्राइस वी आर हैविंग 2 heads and a tail, 2 heads and a tail, 2 heads and a tail, and then again thrice we are having 2 tails and a head, 2 tails and a head, 2 tails and a head, and 3 tails. Lekin if somebody is interested in just knowing the number of heads appearing, which is there in the example, तो उस केस में हमारे पास जो आउटकम है वो या तो 0 है, कि हमारा जो सैंपल स्पेस है वो शो कर रहा है या तो 0 heads, या 1 head, या 2 heads, या 3 heads. In that case, 0, 1, 2 and 3 are random quantities determined by outcome of an experiment. A random variable is defined as a numerical description of outcome. अब हमने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसमें हमारे पास मल्टीपल आउटकम्स आए, और मल्टीपल आउटकम्स में हमारे पास या तो 0 था, या 1 था, या 2 था, या 3 था। अब जो रैंडम वेरिएबल है वो एक ऐसा वेरिएबल है जो कि न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन देता है आउटकम को, जो कि एक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट होती है, विच इज आइदर कंडक्टेड इन लेबोरेटरी, या थ्रू ऑब्जर्वेशन, या थ्रू क्लिनिकल टेस्ट ट्रायल्स। जब भी हम मल्टीपल किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो वो या तो लेबोरेटरी में कंडक्ट होंगे या वो क्लिनिकल ट्रायल्स में कंडक्ट होंगे, जहाँ पर आमने सामने बैठकर क्लाइंट से बात करके एक एक्सपेरिमेंट जनरेट करते हैं और वहाँ से हम रिजल्ट्स के ऊपर बात करते हैं, और या फिर हम ऑब्जर्व करेंगे जहाँ पर हमारे पास 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन सिर्फ सिंगल हैंडेड इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं, और जो भी ऑब्जर्वर है या जो भी रिसर्चर है वो खुद से एनालाइज कर रहा है प्रॉब्लम को और खुद से डेटा कलेक्ट कर रहा है। इसके अंदर कोई सेकेंड या थर्ड पार्टी इंडल्ज नहीं है जो कि आपको डेटा प्रोवाइड कर रही है, जिससे आपका इंटरेक्शन हो रहा है डायरेक्टली, यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग एंड टेकिंग डेटा। तो तीनों किस्म की मेथोडोलॉजीज में जो रैंडम वेरिएबल है वो एक्सपेरिमेंट को न्यूमेरिकल फॉर्म दे देता है, एक्सपेरिमेंट के आउटकम को न्यूमेरिकल फॉर्म देता है, न्यूमेरिक्स असाइन कर देता है एक एक्सपेरिमेंट को, क्या आउटकम को। जिस तरह हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि हमने 3 कॉइन्स टॉस किए, एंड व्हाइल टॉसिंग 3 कॉइन्स वी गेट मल्टीपल आउटकम्स। तो इन दीज मल्टीपल आउटकम्स वी हैव असाइंड वैल्यूज, कि अगर हमारे पास तीनों हेड्स अपीयर होंगे तो वी हैव असाइंड 3 नंबर, अगर हमारे पास 2 हेड्स अपीयर होंगे तो हमने इसको 2 नंबर असाइन कर दिया, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्राइस है, 3 दफा हमारे पास 2 टेल्स अपीयर हो सकते हैं। सिमिलरली एक टेल भी हमारे पास अपीयर हो सकता है, एक हेड भी हमारे पास अपीयर हो सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी जो है दिस इज वंस अगेन, दिस इज थ्राइस अगेन, एंड सिमिलरली 0 पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि कोई हेड अपीयर ना हो और तीनों की तीनों कॉइन्स के ऊपर टेल अपीयर हो जाए। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट के आउटकम को रिप्रेजेंट कर दिया है न्यूमेरिकल्स में, और ये न्यूमेरिक्स या ये जो न्यूमेरिक नंबर्स हैं ये एक्चुअली रैंडम वेरिएबल्स हैं। In other words, random variable is a function whose value is real number, which is determined by each element in a sample space. कि sample space के अंदर हमारे पास जितने भी outcomes आए हैं उन सबको हम एक real number में, set of real numbers जो कि एक mathematical term है, उन real numbers में से एक number assign कर दें। जो भी outcomes हमारे पास sample space में आए हैं उनको हम रियल नंबर असाइन कर दें, तो वो जो भी रियल नंबर हमने असाइन किया है अपने आउटकम को वो एक्चुअली रैंडम वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल टेक अनदर एग्जाम्पल कि हमने 2 बॉल्स ड्रॉ करनी है एक अर्न में से, और उस अर्न में, उस बैग के अंदर या उस बॉक्स के अंदर 4 रेड और 3 ब्लैक बॉल्स हैं, राइट, मीनिंग 4 + 3 7। हमारे पास टोटल 7 बॉल्स हैं और उसमें से हमने विड्रॉ करनी है एक्चुअली 2 बॉल्स,
अब जो बॉल्स की डिस्क्रिप्शन है वो ये है कि इसमें जो रेड बॉल्स हैं वो हमारे पास 4 हैं और हमारे पास ब्लैक बॉल्स 3 है। अब यहां पर एक टर्म यूज हुई है विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि अगर हमने एक बैग में से, एक बॉक्स में से एक बॉल को पिक किया है तो हमने उसको वापस नहीं डालना। मीनिंग हमने 2 बॉल्स ड्रॉ करनी है, हमारे पास बैग में 7 बॉल्स हैं। जब हमने एक बॉल पिक कर ली तो बाकी बॉल्स 6 रह गई हैं, ठीक है। अब हम जब नेक्स्ट बॉल ड्रॉ करेंगे तो वो हम 7 में से नहीं, वो हम 6 में से ड्रॉ करेंगे, राइट। तो एक थोड़ा सा डिफरेंस है। इसी का एक दूसरी टर्म होती है विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि अगर हमने एक बैग में से बॉल ड्रॉ की है, फॉर एग्जाम्पल उसमें 7 बॉल्स हैं और हमने उसमें से एक बॉल ड्रॉ कर ली है, जब हम दूसरी बॉल ड्रॉ करने लगेंगे तो हम पहली बॉल को वापस उसमें डाल देंगे। मीनिंग हमने एक बॉल पिक की, उसका कलर चेक किया और उसको रिकॉर्ड कराया और उसको वापस हमने बैग के अंदर डाल दिया और फिर हमने दूसरी बॉल ड्रॉ की। उस कंडीशन में जब हमने सेकेंड बॉल भी ड्रॉ की है तो हमारे पास जो नंबर ऑफ बॉल्स थी वो 7 ही रहेगी और हम उसमें से देखेंगे कि कितने चांसेस हैं कि जो बॉल हमने ड्रॉ की है वो रेड है या ब्लैक है या वो कौन से कलर की है या उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर हमने विदाउट रिप्लेसमेंट पे बात करनी है तो विदाउट रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमने एक बॉल ड्रॉ कर ली है तो वी विल बी कीपिंग दिस बॉल विद अस एंड व्हेन वी विल बी ड्रॉइंग द नेक्स्ट बॉल, सो द नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 7 to 6, ठीक है जी। तो अब अगर हमने 2 बॉल्स ड्रॉ करनी है एक बैग में से जो कि जिसमें 7 बॉल्स हैं, तो हम हो सकता है कि वो दोनों बॉल्स इकट्ठी ड्रॉ कर लें, ठीक है, या हम पहले एक ड्रॉ करें फिर दूसरी ड्रॉ कर लें। लेकिन विद रिप्लेसमेंट में हम इकट्ठी नहीं ड्रॉ कर सकते। विद रिप्लेसमेंट में हम ये करेंगे कि हम पहले एक बॉल ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम उसको वापस डालेंगे और फिर दूसरी बॉल में ड्रॉ करेंगे और फिर उसका रिजल्ट चेक करेंगे। लेकिन उसकी जो एप्लीकेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अभी हम विदाउट रिप्लेसमेंट पे बात करते हैं। तो हमने विदाउट रिप्लेसमेंट में 2 बॉल्स ड्रॉ की हैं रेंडमली इन सक्सेशन, तो हमने दोनों बॉल्स को फॉर एग्जांपल हमने इकट्ठा ड्रॉ किया है, तो जो रिजल्ट्स हैं वो या ये होंगे कि हमने दोनों बॉल्स रेड ड्रॉ की विच इज मेंशन्ड हियर, या तो वो दोनों बॉल्स रेड होंगी, या उनमें से एक बॉल रेड होगी एक ब्लैक होगी, या उसमें से पहली बॉल ब्लैक होगी और दूसरी बॉल रेड होगी, या उसमें दोनों ब्लैक बॉल्स ब्लैक होगी। अब अगर हमारे पास ये सिनेरियो है तो हमने जब दोनों बॉल्स रेड पिक की है तो इस केस में हमने जो न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन की है अपने आउटकम को वो 2 है। सिंपल कि 2 रेड मीनिंग 2 इज द वैल्यू, और ये जो 2 है ये एक्चुअली रैंडम वेरिएबल है। हमने अपने एक्सपेरिमेंट के आउटकम को एक रियल नंबर असाइन कर दिया। If we are drawing both red balls and we are interested in knowing the red balls number, so therefore we are taking that the number of black balls in this outcome is 0. So what is the outcome? That is 2. Then if we are having one रेड बॉल एंड सेकेंड ब्लैक, तो हमने यहाँ पर इसको 1 असाइन कर दिया। इस केस में भी हमारे पास एक रेड बॉल अपेयर हुई है और थर्ड केस में हमारे पास कोई रेड बॉल अपेयर नहीं हुई, इसलिए हमने इसे 0 असाइन किया। अब जो टोटल जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो 4 है। जो 4 आउटकम्स हैं एक एक्सपेरिमेंट के वो सैंपल स्पेस डिस्क्राइब करें, और ये एस जो है हमारे पास ये शो कर रहा है 0, 1 and 2 आउटकम्स। लेकिन जब हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी में ये रिजल्ट शो हो रहे हैं, तो 0 इज अपेयरिंग 1
once in 4 outcomes. 1 is appearing twice in 4 outcomes, and 2 is appearing again once 4 outcomes. तो इस केस में हमारे पास, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज असाइन होंगी वो ये, वी हैव अपेयर्ड विद 0 once in the experimental outcome, 1 as twice in the experimental outcome of 4, and again 2 as 1 in the frequency outcome of, in the frequency of 4 outcomes. So that is something which describes the total outcome of 4 by 4, which is equals to 1. So sum of all probabilities is equals to 1. So that is something which describes that if we have conducted a simple experiment, तो उस experiment के जो outcomes हैं हम उनको किस तरह से read कर सकते हैं और उनको किस तरह से frequencies allot कर सकते हैं और उन frequencies को किस तरह से analyze कर सकते हैं. If random variable is clear, तो हम उसकी basis के ऊपर जो next चीज़ generate करते हैं वो है discrete या continuous random variable. अब हमारे पास जो conditions हैं आउटकम्स की किसी भी एक्सपेरिमेंट में, वो या तो काउंटेबल होंगी या वो अनकाउंटेबल होंगी. अगर तो हमारा एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें या तो हमने कॉइन टॉस करना है या डाइस रोल करने हैं या कार्ड्स पिक करने हैं एक डेक में से, या हमने एक गिवन लिमिट, एक अंडर द लिमिट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स वी आर taking into consideration specific features, तो उस केस में हमारे पास जो रिजल्ट है वो discrete random variable होगा. मीनिंग कि हमारे पास जितने भी आउटकम्स होंगे हम उनको स्पेसिफिकली कुछ वैल्यूज अलॉट कर सकते हैं. वो कोई भी हो सकते हैं. दिस कैन गो फ्रॉम 1 till thousands, but if it is thousands even, we have to measure it, and if we are measuring it, meaning we are measuring in a discrete way. So in that case we have to allocate specific value to our experimental outcome, which might be that for example, if we take an example that the number of people who are taking quantitative business analysis course in this semester, they must be countable in number. We can count them because we have registered them. So if we are counting them, this might go from 1, 2, 3 up till n, but obviously we are providing them with any numerical number. And this numerical real number of mathematics is describing the discrete number. Secondly, another example is that number of patients visiting Shifa hospital will be 0, 1, 2, 3, 4 up till n in a specific time slot, or in a specific clinic of this hospital, like pediatrics, or if we are taking any other clinic or eye clinic or dental clinic in Shifa hospital. So there must be finite number of people who are visiting hospital. They cannot be infinite. But whatever it is, this might be any value till n, but it has to be in counting. वो जितनी भी वैल्यू है उसको हम काउंट तो कर सकते हैं ना. तो अगर हम उसे काउंट कर सकते हैं, चाहे वो जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू है, लेकिन वो एक लिमिट पे आएगी. अगर वो लिमिट में आ रही है तो इसका मतलब ये है कि वो डिस्क्रीट है, राइट. उस डिस्क्रीट के केस में जो हमारे पास वैल्यूज असाइन होंगी उनको हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहते हैं. सेकेंडली, नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स पार्किंग एट CIT पार्किंग लॉट विल अगेन बी फिनिट इन नंबर. कि हमारी पार्किंग लॉट में, कॉमसेट्स की पार्किंग लॉट में कितनी मोटरसाइकिल्स, कितनी बाइक्स जो हैं वो खड़ी होती हैं एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में, वो जितनी भी है वो आपको एक फिक्स नंबर बताएगा, वो आपको एक फिनिट नंबर बताएगा, आपको एक काउंटेबल नंबर बताएगा. No matter how big it is, but it will be countable. So if the number is countable and if it is finite, but we are ignorant that what is it, so we can mention it under the domain of definition of discrete random variable. Then there is continuous random variable. In continuous random variable, we have not provided, or we cannot attain a fixed number of or a finite number of values. Like
the examples we have discussed, we are talking about a value which is countable or which is measurable. But there might be a case that we are conducting an experiment, and in that particular experiment the value of the outcome is not countable, but this is coming in a range, right? If it is coming in a range meaning that we are not coming up with the exact number of or exact value of any outcome, right? तो उस केस में हमारे पास एक गिवन रेंज आ जाती है कि जो टेम्परेचर है फॉर एग्जांपल इस कमरे का टेम्परेचर हमारी एंटिसिपेशन के मुताबिक 15 to 20 या 15 to 18 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, लेकिन हमारा एक एक्सपेरिमेंट है, हमने एक फीलिंग से या एक ऑब्जर्वेशन से एक चीज़ एंटिसिपेट की है कि एक पर्टिकुलर जगह का टेम्परेचर क्या होगा, या इस कमरे के अंदर टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन कितनी हो सकती है, वेरिएशन कितनी हो सकती है, कि सुबह के वक्त हो सकता है या मॉर्निंग टाइम में, इफ इट इज सनी डे आउटसाइड, तो हो सकता है कि ये टेम्परेचर 15 हो जाए, एंड इन इवनिंग व्हेन इट इज कोल्ड आउट it might reduce to 7. So during the daytime the temperature might be there in 15 to 7 range, 7 to 15 range. So हमारे पास एक exact temperature नहीं आ रहा. Similarly we might talk about heights of students, like the examples which I mentioned here, that weight of newly born children in PIMS hospital. अब PIMS के hospital में जितने भी newly born kids हैं उनका क्या वेट होगा, तो ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी एन एग्जैक्ट नंबर. मल्टीपल किड्स हैं, उनके मुख्तलिफ वेट्स हो सकते हैं, बट रिमेंबर इन एनी रेंज, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी रेंज है 0 to 1 भी अगर हम एक रेंज डिस्क्राइब करते हैं कि 0 से 1 की रेंज में एक एक्सपेरिमेंट का आउटकम एग्जिस्ट कर सकता है, तो देयर एग्जिस्ट इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज between 0 and 1. There exist infinite number of values between 0 and 1. So if we are talking about any outcome which is not providing us an exact value, so we are actually talking about continuous random variable. किसी भी outcome में अगर हमारे पास exact या calculatable value नहीं आती या countable value नहीं आती, तो हम उसे continuous की category में fit in कर देते हैं. Like weights of people, like heights of students, like temperature variations, these are all kind of numbers, the kind of outcomes or kind of experiments which generate not the exact but the values which might come in a range. एक चीज जो यहाँ पर डिस्क्राइबेबल है वो ये दो वैल्यूज हैं, x lies between 1.85 and 4.3, or x lies between 15 degrees to 20 degrees, or x lies between 3 to 5 feet. अगर हम इसको partially analyze करें, meaning अगर हम इस condition को analyze करें from here, तो इस केस में x is greater than or equal to 15. Now ये जो साइन है इसके ऊपर थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दीजिएगा कि जहां पर हमारे पास ये दोनों ब्रेसेस ओपन होती हैं वहां पर x इज ग्रेटर देन एक्चुअली, और जहां पर ये दोनों ब्रेसेस क्लोज होती हैं तो वहां पर एक्चुअली दिस इज लेसर देन. ठीक है, इफ इट इज मीनिंग x इज लाइंग बिटवीन 15 to 20, तो इसका मतलब ये है कि x जो है वो 15 से बड़ा है और 20 से छोटा है. ठीक है, तो इस केस में जो रेंज है वो ये हो सकती है कि जो भी हमारे पास आउटकम होगा उसके अंदर 15 से लेकर 20 तक के आउटकम्स हो सकते हैं, और 15 और 20 उसमें शामिल होगा. अगर हम ये नीचे से ये वाली जो एक बार है ये हम मिटा देते हैं, गायब कर देते हैं, मीनिंग अगर हमारे पास x जो है वो इट इज लाइक दैट, तो इस केस में हमारे पास जितनी भी वैल्यूज आएंगी उसके अंदर 1 और 2 शामिल नहीं होगा. दिस माइट बी 1.1 to 1.9.
इसके अंदर 1 शामिल नहीं होगा. दिस विल बी दैट x इज लाइंग बिटवीन 1 and 2 इन विच 1 and 2 इज नॉट इंक्लूडेड. जब हम ये वाला साइन इसमें ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर से थोड़ा सा क्लियरली नजर आ रहा है, ये वाली अगर हम इसके अंदर इक्वल टू का भी साइन इसमें ऐड करें तो उसका मतलब ये है कि जो दोनों वैल्यूज एक्सट्रीम के ऊपर मेंशन है, ये दोनों वैल्यूज आपके सैंपल स्पेस में शामिल होंगी. तो ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की एक थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है कि जब भी हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं जिसमें हमारे पास जो आउटकम्स हैं वो एक एग्जैक्ट या फिनिट वैल्यू नहीं होती, तो उस केस में हम रैंडम वेरिएबल को कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल ट्रीट करते हैं, जिसमें हमारे पास x की वैल्यू एक स्पेसिफिक रेंज में आती है, दो स्पेसिफिक न्यूमेरिकल नंबर्स के अंदर आती है. नंबर वो भी रियल ही होगा, लेकिन वो जो भी रियल नंबर है उसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं है. तो इस वजह से हमने उसको एक रेंज में डिफाइन कर दिया टू रिमेन मोर एक्यूरेट इन रिजल्ट्स, राइट. तो अगर हमारे पास फिनिट वैल्यू आती है तो वो डिस्क्रीट है, अगर इनफिनिट आती है तो वो कंटिन्यूस है. On the basis of discrete and continuous random variables, now we are in a position to describe discrete and continuous probability distribution. Now, a table or formula listing all possible values that a discrete random variable might take along with associated probabilities is called discrete probability distribution. जब हमने कॉइन टॉस किया था तो हमारे पास मल्टीपल रिजल्ट्स आए थे. उन मल्टीपल रिजल्ट्स के अंदर हमारे पास न्यूमेरिकल क्वांटिटीज भी आ गई थी कि अगर हमने एक रैंडम वेरिएबल, अगर हमने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है तो हमने उसके सैंपल स्पेस को रियल नंबर्स में या न्यूमेरिकल नंबर्स में एक्सप्लेन कर दिया. अब उन न्यूमेरिकल नंबर्स को हम प्रोबेबिलिटी से साइन करें कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 0 अपीयर होगा, 0 हेड्स अपीयर होंगे अगर हमने एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया, या अगर हमने 3 कॉइन्स टॉस किए तो क्या पॉसिबिलिटी है या क्या प्रोबेबिलिटी है कि 0 हेड अपीयर होंगे. तो द प्रोबेबिलिटी इज 1 आउट ऑफ 8 आउटकम्स. अब वो 8 आउटकम्स कौन से थे? रेफर टू द सैंपल स्पेस which when we discussed random variables. तो हमने जब एक कॉइन टॉस किया है 3 टाइम्स या 3 कॉइन्स टॉस किए हैं एट वंस, तो जो पॉसिबिलिटी है आउटकम्स की वो 8 है. 8 चांसेस या 8 टाइप्स ऑफ सैंपल्स अपीयर हो सकते हैं, 8 टाइप्स ऑफ आउटकम्स अपीयर हो सकते हैं. उन 8 आउटकम्स में से क्या प्रोबेबिलिटी है कि 0 हेड अपीयर होंगे? क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों कॉइन्स में से कोई भी हेड नहीं है, मीनिंग ऑल टेल है, ठीक है ना. 0 हेड का मतलब यह है कि तीनों टेल्स आए हैं, तो तीनों टेल्स इस सैंपल स्पेस के अंदर कितने हैं? वंस. तो एक प्रोबेबिलिटी है, देयर इज 1 प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 8 आउटकम्स दैट 0 हेड विल अपीयर, meaning all tail will appear once or 0 head will appear once. Similarly, what is the probability that at least 1 head appear? क्या probability है कि एक head होगा? 3 coins में से 3 coins को हमने toss किया है, क्या probability है कि उनमें से, उन तीनों coins में से एक coin के ऊपर definitely एक आएगा, एक head आएगा? तो उस केस में हमारे पास 3 इज दी प्रोबेबिलिटी. कि 3 ये हमने दोबारा से अगर हम आप उसको एनालाइज कर लो तो here we can calculate, we can consider, sorry, we can see that 1 is appearing, 1 head is appearing here, 1 head is appearing here, and 1 head is appearing here. And 0 head is appearing here. तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/8 है. इन तीनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो प्रोबेबिलिटी है 3/8.
टू हेड्स को अगर हम कंबाइन करेंगे, दो हेड्स अपीयर हो, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है अगेन 3/8 और 0 टेल अपीयर इज 1/8। लेकिन इसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है। हम किस में इंटरेस्टेड है? सिर्फ और सिर्फ हेड में इंटरेस्टेड है, हम टेल में इंटरेस्टेड नहीं है कि कितनी टेल्स अपीयर होंगी, कितने हेड्स अपीयर होंगे। इस आउटकम से या इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या रिजल्ट पता लग रहा है? वो ये पता लग रहा है कि 0 हेड अपीयर होंगे वंस और ऑल 3 हेड्स विल बी वंस। तो जो प्रोबेबिलिटी है कि तीनों के तीनों कॉइन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेल, ये भी पॉसिबिलिटी वंस है, और तीनों के तीनों जो कॉइन्स हैं वो शो कर रहे हैं हेड, ये भी पॉसिबिलिटी वंस है इन दी सैंपल स्पेस। और 1 और 2 की 1 हेड अपीयर या 2 हेड अपीयर, ये प्रोबेबिलिटी 3 टाइम्स एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ m इज इक्वल्स टू m के कॉलम में डिस्क्राइब किया है कि अगर हमारे पास 8 आउटकम्स का एक सैंपल स्पेस जनरेट हुआ है तो उसमें से कितने कॉइन्स, कितने दफा 1 हेड अपीयर होगा, कितनी दफा 2 हेड्स अपीयर होंगे, कितनी दफा 0 हेड्स अपीयर होंगे और कितनी दफा ऑल हेड्स अपीयर होंगे। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अब हमने एक स्टेप हायर डिस्कस कर लिया। इससे पहले हमने सिर्फ ये डिसाइड किया था कि हमने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और उसके आउटकम्स को रिकॉर्ड किया, और सारे के सारे आउटकम्स जो कि पॉसिबिलिटी है कि ये सारे आउटकम्स हो सकते हैं, उनको हमने सैंपल स्पेस का नाम दे दिया। अब उन सैंपल स्पेस को हमने डिस्क्रीट वैल्यूज और डिस्क्रीट रियल नंबर्स भी असाइन कर दिए, तो वो रैंडम वेरिएबल्स बन गए। अब अगर हमने उनको काउंट करके उनके ऊपर प्रोबेबिलिटी भी असाइन कर दी है, तो जब हमने प्रोबेबिलिटीज असाइन की है तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। जिस तरह से हमने कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के अंदर कंटिन्यूस वेरिएबल्स को डिस्कस किया था और उनको हमने एक रेंज में वैल्यूज असाइन की थी, बिल्कुल इसी तरह से हमने कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी रेंज में प्रोबेबिलिटी के अंदर रेंज में फ्रीक्वेंसीज आइडेंटिफाई करनी है कि क्या फ्रीक्वेंसी हो सकती है इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर एक वेरिएबल एक नंबर को अपीयर होने में, इफ इट इज अ रेंज ऑफ। तो in a given probability distribution, values of frequency cannot be presented in tabular form. जब हमारे पास x की एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं पता, हमें उसकी फिनिट क्वांटिटी ही नहीं पता, तो अगर वो फिनिट क्वांटिटी नहीं है तो फिर हम उसे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? फिर हमारे पास उस रेंज के अंदर भी एक गिवन मार्जिन आएगा और उस मार्जिन को हम रीड करेंगे। वो कैसे? टेल यू। और उस मार्जिन को रीड करने का जो टर्म है, that is known as probability density function। और probability density function की बेसिस के ऊपर हम continuous probability distribution को रीड कर सकते हैं। Like heights and weights of people of 21 years of age। अब 21 साल की उम्र के लोगों का हाइट और वेट कितना है, तो डेफिनेटली वो हमारे पास एक रेंज आएगी। अगर हम सिर्फ फॉर एग्जांपल वेट कंसिडर करते हैं कि 21 इयर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं कॉम सेट्स में जो पढ़ रहे हैं फॉर एग्जांपल, उन सब का हम वेट पहले रिकॉर्ड करेंगे। उन सब का वेट रिकॉर्ड करने के बाद हम उसको एक रेंज दे देंगे कि जितने भी बच्चे कॉम सेट्स में 21 इयर्स के पढ़ते हैं उनका वेट 40 से या 45 से 70 के दरमियान में है। अब 40 से 70 के दरमियान में अनलिमिटेड बच्चा होगा जिसका वेट होगा, ठीक है। नाउ इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रैंडमली सिलेक्ट अ पर्सन जिसका वेट एग्जैक्टली जो है वो 60 हो, या उसकी जो हाइट है वो एग्जैक्टली 164 सेंटीमीटर हो। तो हम बात करते हैं एक रेंज की, लेकिन वो रेंज जो है वो डिस्क्राइब होती है एटलीस्ट और एट मोस्ट के लिमिटेशंस के अंदर। That if we are talking about range of heights or range of weights, so we are talking about a range which is at least 45
और एट मोस्ट 70। तो इसका मतलब ये है कि 45 से कम वेट के बच्चे इस रेंज में शामिल नहीं है और 70 से ज़्यादा वेट के बच्चे इस रेंज में शामिल नहीं है। तो जो मिनिमम रेंज है वो 45 है और जो मैक्सिमम रेंज है वो 70 है। तो इस केस में हमारे पास, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमने एक रैंडमली बच्चा सिलेक्ट किया है और उसका वेट जो है वो 60 है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हमने ये एंटिसिपेट किया है कि उसका वेट 45 से 70 के दरमियान में ही है, क्योंकि यही हमने मेजरमेंट्स कैलकुलेट की थी। तो इस केस में जो मेजरमेंट्स हैं, या इस केस में जो हमारे पास कैलकुलेशंस हैं, वो जिस मीडियम पे होती हैं उस मीडियम को हम एक और टर्मिनोलॉजी में डिस्कस करते हैं, विच इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो बेसिकली it is a function with values f of x. It's called probability density function for the continuous random variable x if the total area under the curve and above x-axis is equals to 1, and if the area under the curve between any two coordinates x is equals to a and x is equals to b gives the probability that x lies between a and b. अब ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हो जाएगी इस कर्व से। दिस इज द कर्व ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये टच नहीं करेगा कभी भी इस एक्सिस पे। दिस इज द एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस बेसिकली हमें एक्सप्लेन करता है या डिस्क्राइब करता है कि इसकी हाइट कितनी है। अब हाइट इसकी क्या होगी वो मोमेंट्स और कर्टोसिस जब हम डिस्कस करेंगे तो हमें पता लगेगा, लेकिन बेसिकली या जो इसकी हाइट है वो डिस्क्राइब करती है इसका मीन, और जो इसकी डेंसिटी है, इसका जो फैलाव है, वो डिस्क्राइब करता है इसका वेरिएंस। अभी हम मीन और वेरिएंस डिस्कस करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी जो हमने चीज़ डिस्कस की है कि प्रोबेबिलिटी, हमने इनिशियली जब हमने प्रोबेबिलिटी के लेक्चर्स पढ़े थे तो हमने डिस्क्राइब किया था कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल्स टू ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1, कि एक प्रॉपर्टी है प्रोबेबिलिटी की। और दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि जो सिंगल प्रोबेबिलिटी है आउटकम की, एक इवेंट के, दैट विल हैज टू बी लेस देन 1 एंड इट विल बी नॉन जीरो। अब हमारे पास जब हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को डिस्क्राइब किया है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है दैट इज कैलकुलेटेड अंडर दिस कर्व। द एंटायर एरिया under this curve is actually lying in the probability density function. Now in probability density function, if we are having two outcomes, two ordinates, जिस तरह से हमने at least और at most की बात की, अगर हमारे पास दो ordinates हैं जो कि A है और B है, तो उस केस में एक इम्पॉर्टेंट चीज जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की है वो ये है कि जो एरिया अंडर दिस कर्व है दिस इज इक्वल्स टू 1। अब अगर एरिया इस कर्व के अंदर 1 के इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों वैल्यूज जो है ये हमारे पास लेस देन 1 होंगी। ठीक है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का जो फंक्शन है वो अप्लाई हो रहा है। नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज दैट if x is lying between any two variables, that is a and b, then we have assigned with two range of values, that is at least and at most. The at least value is a and at most value is b, meaning whatever is the continuous variable of consideration that is lying between a and b, including a and b as well, because these are the ordinates. तो जो फंक्शन है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, वो हमें बेसिकली ये डिस्क्राइब करता है कि कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें किस तरह से फ्रीक्वेंसीज असाइन करनी होंगी ऑफ नॉन टेबुलर डिस्क्रीट नॉन टेबुलर वेरिएबल। उस केस में हमारे पास एक रेंज आती है वैल्यूज की जो कि हम डिस्क्राइब करते हैं एरिया अंडर द कर्व, and the area under the curve should be equals to 1,
and it has to determine with between 2 points, between 2 points or between 1 point as well. अगर हमारे पास अगर हम ये कंसिडर करें कि x की वैल्यू जो है वो लाई करती है between a and b, तो डेफिनेटली ये हमारे पास एक रेंज में लाई कर रही है. Meaning 162.8 centimeters to 171.5 centimeters. तो how many values will be lying in between, उसको हम अपने probability normal distribution की चार्ट में एनालाइज करते हैं कि अगर हमारे पास इतने आउटकम्स हैं एंड अगर हमारे पास इतनी गिवन वैल्यूज हैं तो हम इसको किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व पे हमारे पास जो भी वैल्यूज आएंगी इसको हम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास इसका एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा. लेकिन जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को डेफिनेटली एक्सटेंड करेंगे. लेकिन सो फार ओनली दिस हैज़ टू बी इन योर माइंड कि अगर हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए एनालाइज करना है तो हम उसको represent करते हैं in the form of a bell shaped curve whose area under the curve is equals to 1, and when we are given with two ordinates, ordinate A and ordinate B, तो ये हमारे पास fluctuating probabilities बताती है, fluctuating values बताती है x की जो कि A और B के दरमियान में lie कर सकती है. ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है या ये रिप्रेजेंटेशंस हो सकती हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की. वो एक सिंपल कर्व की फॉर्म में भी हो सकती है, वो कर्वी लीनियर भी की फॉर्म में भी हो सकती है लाइक दिस. ठीक है, वो इस कर्वी लीनियर फॉर्म में भी हो सकती है. वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया, बट दिस इज कंटिन्यूइंग इन नेचर. सिमिलरली वो एक स्पेसिफिक फिगर से इनिशिएट होकर हमारे पास वैल्यूज प्रेजेंट कर सकती है. इस केस में हमारे पास जो ये वाला मार्जिन है वो ये शो कर रहा है कि इस रेंज में यहाँ 0 से लेकर 5 तक की जो हाइट्स है वो एग्जिस्ट नहीं करती और 5 से ज़्यादा हाइट्स एग्जिस्ट करती है. ठीक है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते, सो दिस डिस्क्राइब्स के ये यहाँ तक डिसकंटिन्यूड है और इसके आगे कंटिन्यूड है. राइट, सिमिलरली ऑल दीज graphical representations are the representations of probability density function. कि अगर हम probability density function को graphically represent करें तो इसी किस्म की forms में वो represent हो सकता है. Okay, now we talk about a very interesting and a very important area in random variables, which is mean of random variables, and then we'll be talking about variance of random variables. So before we discuss in detail that what is actually the mean and variance of random variables, I just need to give you a slight background कि mean होता क्या है. अब mean एक ऐसी value है जो कि mean is basically a value of central tendency. For example, हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं. पहले स्टूडेंट ने एक टेस्ट के अंदर 5 मार्क्स लिए, दूसरे स्टूडेंट ने आउट ऑफ 5, दूसरे स्टूडेंट्स ने 3 मार्क्स लिए और तीसरे स्टूडेंट ने 4 मार्क्स लिए. ठीक है जी, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3 है, मीनिंग n इज इक्वल्स टू 3, और जो टोटल मार्क्स है हमारे पास वो है 12. अगर हमने एनालाइज करना है कि 3 बच्चों के ऑन एन एवरेज या 3 बच्चों के मार्क्स का मीन क्या है, तो वो हम रिप्रेजेंट करेंगे x बार से, विच इज टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय number of students, which is 12 over 3 is equals to 4. अब अगर देखा जाए एक बच्चे ने 4 नंबर लिए, लेकिन एक बच्चे के नंबर 4 से ज्यादा है और एक बच्चे के नंबर 4 से कम है, तो mean is lying or mean is the value which is describing the central tendency of the given set of data.
मीन हमें एक ऐसी वैल्यू बताता है जो कि एवरेज होती है। एन एवरेज इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द सम ऑफ वैल्यूज इन द इंटायर डेटा सेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, राइट। सम ऑफ वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज हैं उनका आप सम कर लें, उनको टोटल कर लें, प्लस कर लें और उसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ वैल्यूज पे। कितनी वैल्यूज थी, कितने बच्चे थे, 3 बच्चे थे, कितने टोटल मार्क्स थे बच्चों के, वो 15 है। पहले बच्चे के 5 है, दूसरे के 3 है, चौथे के 4 है, ये कोई और भी हो सकता है। और इनको हमने डिवाइड किया है 3 पे, तो वी आर गेटिंग मीन वैल्यू ऑफ 4। इफ मीन इज क्लियर टू यू, तो इसका मतलब ये है कि जब हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है तो हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स भी मौजूद हैं और उनकी फ्रीक्वेंसीज भी मौजूद हैं। अब मीन कैसे कैलकुलेट होगा? मीन कैलकुलेट होगा कि हमारे पास हर वैल्यू और उसकी फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट ऐड होगा, सम ऑफ एवरी वैल्यू with its frequency. I repeat, sum of every value with its frequency. हमने डिस्कस किया था coin tossing. Before I discuss this example, we have discussed coin tossing. अब हमने sample space में डिस्क्राइब किए total of 8 outcomes. In total of 8 outcomes, हमारे पास 0 appear हुआ, 0 heads appear हुए once. If I refer to for more clarity, yes, हमारे पास 0 heads appear हुए once, 1 head appear हुआ thrice, 2 heads appear हुए thrice और 3 heads appear हुए once. अब हम यहाँ से अगर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें तो हमारे पास जो मीन है वो कैलकुलेट होगा x इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ x. x हमारे पास है 0 मल्टीप्लाई बाय 1/8. x वैल्यू जो भी हमारे पास आउटकम है उसको हमने उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया, द प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू एंड इट्स फ्रीक्वेंसी. 1 मल्टीप्लाई 3/8, अगेन 2 मल्टीप्लाई 3/8, 3 मल्टीप्लाई 1/8. तो यहां से हमारे पास जो रिजल्ट है दैट विल बी 0, 3/8, 6/8 and 3/8. What we need to do is to take sum of, which is represented by summation. अब summation को हम डिस्क्राइब करेंगे 0 plus 3/8 plus 6/8 plus 3/8, which is equals to 3 plus 6 plus 3/8, which is equals to 12/8, or 12/8 is equals to 3/2, that is 1.5 अराउंड. अब 1.5 क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मीन है हेड्स टॉसिंग का वो ये है कि 1.5 टाइम्स हेड अपेयर होगा. ऑन एन एवरेज हेड कितना अपेयर होता है 8 आउटकम्स में? तो 1.5 दफा हेड अपेयर होता है 8 आउटकम्स में. तो दैट इज समथिंग विच इज द एप्लीकेशन ऑफ मीन. सिमिलरली अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करें और एक और एग्जांपल डिस्कस करें कि ईच ऑफ नंबर्स, अच्छा यहाँ पर एक और टर्म यूज हुई है विच इज एक्सपेक्टेड वैल्यू. Find the expected value of x where x represents the outcomes when a dice is tossed. एक डाइस है, अब हमने कॉइन टॉस नहीं किया, एक डाइस रोल किया और उसमें हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आइडेंटिफाई करनी है. तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो एक ऐसी वैल्यू होती है x की जो कि हम ऑन एन एवरेज एंटिसिपेट करते हैं.
या हम प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर हमारे पास एक डाइस हमने मल्टीपल टाइम्स रोल की है और ये एवरेज आ रही है हमारे पास रिजल्ट्स की, तो उस केस में हम एक जनरल अजम्पशन दे देते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो 2 होगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो 3 होगी, लेकिन दैट इज बेस्ड ऑन द प्रायर एक्सपीरियंस या प्रायर ट्रायल्स। अब इस केस में अगर हमने एक डाइस को रोल किया है तो जो प्रोबेबिलिटी है हर आउटकम की, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 1 अपीयर होगा, 1/6 है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 अपीयर होगा, 2/6 1/6 है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 अपीयर होगा, 1/6 है। तो जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं बिटवीन 1 to 6, उनकी प्रोबेबिलिटी इज फिक्स, क्योंकि हमने एक डाइस को एक दफा रोल किया। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी एक्स की, तो उस केस में हम एनालाइज करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है हर नंबर की, हर आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी है दिस इज इक्वल एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/6। तो 1/6 को हम हर नंबर के साथ, हर वैल्यू के साथ प्रोडक्ट लेंगे और उसको सम करेंगे, तो जो रिजल्ट है हमारे पास वो डिस्क्राइब करेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। नंबर हमारे पास जो आउटकम्स हमारे पास हो सकते हैं एक डाइस को रोल करके, वो 1 2 3 4 5 या 6 होंगे। इस केस में हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है हर नंबर की वो 1/6 है। हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कैलकुलेट की है बाय मल्टीप्लाइंग or by taking the product of each number which is appearing on dice with its probability, that is 1 into 1/6, 2 into 1/6, so on up till 6 into 1/6. By taking the sum total of all the probabilities and multiplying them and adding them, we get 3.5 result, meaning एक individual जो है वो रोल करेगा डाइस को 3.5 टाइम्स और वो अचीव करेगा रिजल्ट, मीनिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है दिस इज समेशन ऑफ एक्स इनटू एफ ऑफ एक्स। एक्स हमारे पास 1 से लेकर 6 तक लाई कर रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो फिक्स है, 1/6 है। इसका जो सम होगा वो होगा डेफिनेटली 1 इंटू 1/6 प्लस 2 इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 1/6 प्लस 4 इंटू 1/6 एंड सो ऑन टिल 6 इंटू 1/6, राइट। जब हमने इसको ऐड किया प्रोबेबिलिटीज के साथ, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो आया, I take a better space, 1/6 plus 2/6 plus 3/6 plus 4/6 plus 5/6 plus 6/6. Now we have to add them. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, which is 21/6. This is equals to 3.5. Now, on an average, this means that on an average a person will roll 3.5 dice, ताकि हमारे पास expected value of x generate हो सके. Variance. Now with the variance, again, before going into the detail of variance of random variables, I'll just give you an idea that what actually variance is about. अगर हमारे पास एक set of values given है which is 2, 4, 6, 8, 10, तो इन सब के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 का। तो इसका जो वेरिएंस है वो 0 होगा।
So variance describe what? Variance described variation in values. That what is the variation lying between values, कि दो वैल्यूज या दो से ज़्यादा वैल्यूज जो भी डेटा में मौजूद हैं उनका आपस में कितना वेरिएशन है, और जो डिग्री ऑफ वेरिएशन, जो इंटायर डिग्री ऑफ वेरिएशन उस पूरे डेटा के अंदर शो करता है, दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन. राइट, कि उस पूरी की पूरी जो डेटा सेट हमारे पास मौजूद है उसके अंदर ओवरऑल डिग्री ऑफ वेरिएशन कितना है, वो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन शो करता है, विच इज द अंडर रूट ऑफ वेरिएंस. सिग्मा से हम इसे शो करते हैं, विच इज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस. ये तो हम फॉर्मूला की बात करें, लेकिन बेसिकली वेरिएंस डिस्क्राइब्स द वेरिइंग एटीट्यूड इन द गिवन सेट ऑफ डेटा. अब ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी है कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 हमारे पास दो के वेरिएशन के साथ अगर डेटा सेट मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इनमें कोई वेरिएशन नहीं है, इसका कोई वेरिएंस नहीं है, इसका वेरिएंस 0 है. और अगर 0 वेरिएंस है तो उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है. यूनिटी है, सिमेट्री है, सिमेट्री के साथ मूव हो रहा है डेटा, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं है. दो वैल्यूज आपस में बिल्कुल उतना ही वेरी करती हैं, जितनी पहली और दूसरी वैल्यू बिल्कुल उतना ही वेरी करती हैं जितना तीसरी और चौथी, जितना चौथी और पांचवी, जितना पांचवी और छठी, एंड सो ऑन. इसका मतलब यह है कि इन वैल्यूज में वेरिएशन नहीं है और इनके अंदर सिमेट्री है. सिमेट्री है तो इसका मतलब यह है कि स्टैंडर्ड डेविएशन या जो स्टैंडर्ड सेट है या जो उनकी ऑन एन एवरेज जो उनको डेविएट करती है वैल्यू, वो 1 है. राइट, सो वेरिएंस ऑफ अ पॉपुलेशन is variance of population describes the variation which is lying in the data set which is available to us. Now what the actual definition says is that a population whose observations are values assumed by a random variable when an experiment is repeated over and over again indefinitely not only has a mean mu, ये जो capital U है, this is describing mu, which is population mean. This is mu. But also variance we write as sigma square x or simply sigma square. ठीक है, ये वाली चीज़, ये वाली जो नोशन है, ये मुझे थोड़ी सी डिस्क्राइब करनी है. And this is actually known as sigma square, and this is known as sigma square of x. Now we refer to this population variance as variance of random variable, which is expected value of x minus mu square, x minus mu square, which is equals to sum of x minus mu square with its frequencies. अगर हमने वही डेटा सेट लें जो कि हमने इससे पहले लिया था, इससे पहले जो हमने डेटा सेट लिया था वो था वी आर रोलिंग अ डाइस, तो उस केस में हमारे पास जो रिजल्ट था वो या तो 1 अपीयर होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 या 6. If this is x, then x minus mu वो क्या होगा? हमारे पास यहाँ से जो मीन हमने कैलकुलेट किया था वो था 3.5 लास्ट एग्जाम्पल. हमने x माइनस म्यू कैलकुलेट करना है, मीनिंग कि x और उसके मीन में कितना वेरिएशन है वो हम कैलकुलेट करेंगे 1 माइनस 3.5 का स्क्वायर, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी 1/6 प्लस
2 माइनस 3.5 स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी थी 1/6, मीनिंग प्रोबेबिलिटी थी. सिमिलरली प्लस 3 माइनस 3.5 square into 1/6, so on till 6 minus 3.5 square into 1/6. इन सबको अगर हम माइनस कर लें और उनका प्रोडक्ट ले लें, मीनिंग 1 माइनस 3.5 का जो भी रिजल्ट आए उसका आप स्क्वायर ले लें और उसको 6 से डिवाइड कर दें. सिमिलरली 2 माइनस 3.5 का स्क्वायर ले लें और उसको 6 पे डिवाइड कर दें, तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो रिप्रेजेंट करती है. फॉर एग्जांपल जो हमारे पास वैल्यू आई है, ये x है. तो हमारे पास ये जो भी वैल्यू आई है, फॉर एग्जांपल x1, ये डिस्क्राइब करती है वेरिएशन. हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मीन एंड वेरिएंस, बट फॉर दिस वी हैव टू फोकस दैट वी नीड टू कंक्लूड कि जब हम मीन की बात करते हैं रैंडम वेरिएबल में, तो वो एक ऐसी वैल्यू है जो कि एक गिवन सेट ऑफ डेटा में मल्टीपल टाइम्स अपीयर होती है या ऑन एन एवरेज अपीयर होती है या सेंट्रल टेंडेंसी को डिस्क्राइब करती है. लेकिन वेरिएशन या वेरिएंस वो वैल्यू डिस्क्राइब करता है जो एक गिवन सेट ऑफ डेटा के अंदर वेरिएशन विद रेफरेंस टू इट मीन, कि उसके जितना भी डेटा है वो अपने मीन से कितना डेविएट करता है, अपने मीन से कितना डेविएट करता है, अपने मीन से कितना आगे पीछे मूव करता है. तो यहाँ पर एक चीज जो नोट करने वाली है वो ये है कि जितने दफा हमारे पास 3.5 से कम नंबर अपीयर हो रहा है, उतनी ही दफा 3.5 से ज्यादा नंबर अपीयर हो रहा है. मीनिंग 1, 2 and 3 are less than 3.5 और 4, 5 and 6 are greater than 3.5. तो अगर हमारे पास एक इस तरह का डेटा है जिसमें तीनों के तीन नंबर्स एवरेज से बड़े हैं और 3 नंबर एवरेज से छोटे हैं, तो वेरिएशन क्या होगा? जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो आपको डिस्क्राइब करता है उसका वेरिएशन, जो कि इसमें 0 है, इसलिए क्योंकि इनके दरमियान वेरिएशन नहीं है, इन आउटकम्स के अंदर वेरिएशन नहीं एग्जिस्ट करता. So this value x1 if describes 0, meaning that there isn't any variation in the set of values. So in this lecture we have discussed that what actually are the random variables, and we analyzed कि random variable एक ऐसा discrete या continuous random discrete या continuous real number है जो कि हम अपने experimental outcome को assign करते हैं, right? हर experimental outcome के को हम एक रियल नंबर असाइन कर देते हैं जो कि उसे सैम्पल स्पेस में लाया करता है, जो कि पॉसिबिलिटी होती है उस एक्सपेरिमेंट का एक रिजल्ट. उस पॉसिबिलिटी को हम एक रियल नंबर असाइन करते हैं जो कि डिस्क्रीट भी हो सकता है और कंटिन्यूस भी हो सकता है. डिस्क्रीट उस वक्त होगा जब हम उसको काउंट कर सकेंगे, जब हम उसे उसकी एक लिमिट आइडेंटिफाई कर सकेंगे, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा नंबर हो. और कंटिन्यूस उस वक्त होगा जब हम एज, हाइट, वेट या हम टेम्परेचर रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास एग्जैक्ट नंबर रैंडमली अपीयर होना बहुत मुश्किल है या इम्पॉसिबल है. तो उस केस में हम एक रेंज ऑफ वेरिएबल्स डिस्क्राइब करते हैं और उसको हम विद रिस्पेक्ट टू एरिया अंडर द कर्व स्टडी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल थ्रू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और उसमें हम उनको प्रोबेबिलिटीज असाइन करते हैं बिटवीन 1 बिकॉज एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू 1, और वहाँ से हम डिस्कस करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसीज. और इसके अलावा हमने डिस्कस किया इस लेक्चर के अंदर मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स विच इज समेशन x इनटू fx, कि जो भी आउटकम है उसको उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ या उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ हम प्रोडक्ट लेकर उसको ऐड करें तो हमारे पास मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स कैलकुलेट होता है, और वेरिएंस हमारे पास कैलकुलेट होता है विद रेफरेंस टू द वेरिइंग डिग्री ऑफ वैल्यूज के एक गिवन सेट ऑफ डेटा के अंदर कितना वेरिएशन है उसके मीन से, कि एक गिवन सेट ऑफ डेटा अपने मीन से कितना डेविएट होता है
वो डिस्क्राइब होता है वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स के अंदर। और हमने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड डेविएशन से भी एनालाइज की कि एक ऐसा डेटा जिसके अंदर वेरिएशन नहीं है या जिन वैल्यूज के दरमियान में उनके मीन के कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंस नहीं है, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होती है, क्योंकि डेटा बहुत सिमेट्रिकल होता है। अब मीन और वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं और उससे हम जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंटिसिपेट कर सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम।